आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे करियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। थैंक्स टू द एआई बूम, कि आज स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या मेलानोमा डिटेक्शन, ऑडियो डेटा इंटरप्रेट करना हो या विजुअल डेटा, एआई वाइड स्पेक्ट्रम में अपनी पकड़ बना रहा है। एआई की फील्ड में जॉब मार्केट में स्टेडी ग्रोथ विटनेस किया है। हम आज के डिजिटली इनेबल दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये पूरा फिनोमेना एआई ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर गगन वार्ष्णेय जी मौजूद हैं। सर आईएमएस गाजियाबाद में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद पर कार्यरत हैं। सर को इस फील्ड में कई वर्षों का अनुभव है। आपका स्वागत है सर हमारे शो में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और अपना एक्सपर्टीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए आपने समय निकाला। ओवर टू यू सर। Thank you so much, Akansha. Well, it's a matter of great pleasure and privilege for me to welcome all the students and job seekers on the occasion of a career orientation program, right? So I will just try to share my slides first, then we'll start the session on career in AI. Okay, so let us start a session, career in AI. AI stands for artificial intelligence. So the main objective of this presentation is to give a brief idea about the objectives of artificial intelligence, types of artificial intelligence, and what are the career and scope in AI, salary for AI professionals, and top AI recruiters or top companies we can say for hiring AI professionals, and the highest paying countries for AI engineers. So I would like to divide this PPT into two main parts. Number one is career and another is artificial intelligence. So let us start first with career and career development. You know that what is career? Career, we all know that it is also known as Ajivika, right? So if I'm talking about a career, what is career? It is basically a person's progress through his life. How a particular person progress throughout its journey from beginning to the end. This is known as a career. Now the second part, which is very much important, what is knowledge and by enhancing the skills that we have. Skills जिसको हम कौशल भी बोलते हैं, right? Now, career counseling acts as a link or a bridge between the school, college, and work, right? So, the main objective of career counseling is choosing an appropriate and sensible career. So, if I want to represent career counseling, I can just represent it with the help of a very simple graph. So, we are four stages in our life. Number one is called the elementary stage. The elementary stage in which we go to the play school, जहाँ पर हम play school में जाते हैं, prep junior करते हैं, prep senior करते हैं. उसके बाद हम second phase में आते हैं, वो हमारा स्कूल का phase होता है जहाँ पर हम लोग first से 12th standard तक अपना education ग्रहण करते हैं. Then after that we have a college जहाँ पर हम graduation और post graduation भी करते हैं. उसके बाद हम या तो अपना खुद का business करते हैं, खुद का अपना काम करते हैं, या हम job करते हैं. This is known as a work. So there are four basic phases of our career in life, which is starting from elementary to the work phase, right? Now, the main objective of career is to understand the career planning. हमारी जो प्लानिंग है वो सही तरह से होना चाहिए. अगर हमारी प्लानिंग सही नहीं है तो वी आर नॉट एबल टू गेट इट मोर फ्रीक्वेंटली. तो वी हैव एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग, किस फील्ड में हमें जाना है, कैसे जाना है, इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है. देन डिटरमाइन पर्सनैलिटी एंड करियर इंटरेस्ट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन स्मार्ट गोल्स. वी वांट टू फोकस ऑन अ गोल, बट जो हमारे गोल्स होने चाहिए वो स्मार्ट होने चाहिए. स्मार्ट होने का मतलब क्या है? वो कैरियर ओरिएंटेड होने चाहिए और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उस पर हम फोकस कर सकें, राइट? Now, the main thing, the basic errors while we are trying to choose a career, हमको कुछ ना बेसिक एरर्स हमारी होती हैं जब हम अपना कैरियर को चूज करते हैं. वो क्या हो सकती हैं? लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस. नंबर वन इज कॉल्ड द पेरेंटल प्रेशर. हमारे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है. पेरेंट्स मीन्स आपके फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं. जनरली ये देखा गया है कि फैमिली में जो फादर है
अगर उसकी कोई इच्छा रह गई है कि मेरा बेटा मैं ये करता, तो वो अक्स अपने बच्चों में देखना चाहता है कि अगर मैं ये चीज नहीं कर पा रहा तो मेरे बच्चे उस चीज को करें। दैट इज कॉल्ड अ पेरेंटल प्रेशर। सेकंड इज कॉल्ड द पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर में जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपके दोस्त लोग हैं, आपके मित्र लोग हैं, आपके सराउंडिंग्स में उनका प्रेशर कि ये कर लें बेटर। इज इट क्लियर? So I'm talking about the basic errors while choosing a career. Number one is the parental pressure. Number two is the peer pressure, surroundings, and then third is mob mentality. जो सब लोग कर रहे हैं वही करने की कोशिश करना. And then we have inclination toward medical or engineering professional. जनरली घरों में ये देखा गया है कि जो कैरियर का ऑप्शन है मेडिकल और इंजीनियर प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा रहता है, राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैरियर दैट विल अर्न यू अ गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट जॉब को अभी भी इस तरह से माना जाता है कि दिस इज मच मोर सिक्योर जॉब एज कम्पेयर टू द प्राइवेट जॉब. बट आज की डेट में ऐसा नहीं है. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब में भी आपका जॉब ऑलमोस्ट सिक्योर रह सकता है, राइट. So there are two types of career. Number one is called education-based career. Number two is called talent-based career. राइट. एजुकेशन बेस्ड कैरियर जिसमें आपको डिग्री मिलती है, चाहे वो ग्रेजुएशन की डिग्री हो, चाहे वो पीजी की डिग्री हो. और टैलेंट बेस्ड कैरियर वो कैरियर जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका महारत हासिल है. से फॉर एग्जांपल, अगर मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है तो मेरी सिंगिंग में मेरी एक चॉइस है, तो मैं सिंगिंग प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकता हूँ, राइट. दिस इज माई टैलेंट जो मेरे से कोई चुरा नहीं सकता. इफ आई एम गुड इन स्पोर्ट्स, so that can be my career also, right. Now the career planning can be done with the help of four major phases or steps. Number one, self assessment. हमको सबसे पहले अपने आप को assess करना है, अपने आप को देखना है हम कहाँ स्टैंड करते हैं. उसके बाद विल ट्राई टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस. कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पर हम अपना कैरियर प्लान कर सकते हैं. उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को चूज करना, और चूज करने के बाद उसको अचीव करने के लिए टारगेट पर फोकस करना, और उस गोल को अचीव करने के लिए अपना 100% एफर्ट देना. दिस इज द फोर मेन phases of career planning, right. So where and how do I start? The question arises in mind in very number one, the wrong questions जो हमारे दिमाग में आते हैं सबसे पहले वो ये है, what jobs are in demand. कौन सी जॉब्स ऐसी जो डिमांड में है. So what are the most high paying jobs available in market? Number three, what job can I do abroad? Number four, what jobs require minimal effort for high salary, right? And last but not the least, what jobs have the shortest hour? These are the wrong questions that generally arises in each and every mind of a student or a job seeker. But the right answer is, and last is also there, which career can get me promoted faster, right? These are the wrong questions. Why these are called wrong questions? I will just give you a solution for that. The right question is that what will make me happy. अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं जो आपको पसंद है और उसमें आप अपना करियर को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, राइट. जिसमें मुझे खुशी मिलती है, जिस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है, उसको आप बहुत आगे से ले जा सकते हैं. सेकंड, मेरा जुनून किस जॉब की तरफ, किस कैरियर की तरफ ज़्यादा है, वो मेरा एक क्वेश्चन है. हाउ डू आई ड्रीम ऑफ डूइंग, और उसको मैं किस तरह से देखता हूँ, दैट इज इम्पॉर्टेंट. लॉन्ग टर्म के लिए आपकी हैप्पीनेस, आपकी पैशन और आपका ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है. तो मेन क्वेश्चन, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो कौन सा ऑप्ट करें, साइंस फील्ड में जाएं, कॉमर्स फील्ड में जाएं, या आर्ट फील्ड में अपना करियर बनाएं. अगर मैं जॉब सीकर्स की बात करूं तो मैं बोलूँ कंप्यूटर साइंस यूज़ करूं, या एनवायरमेंटल साइंस यूज़ करूं, लाइफ साइंस यूज़ करूं, मैनेजमेंट यूज़ करूं, या आर्ट्स के डिफरेंट फील्ड्स में मैं अपना करियर ऑप्ट करूं. ये क्वेश्चन जनरली माइंड में आते हैं. So let us start with finding out who are you. So there are n number of ways by which you are able to identify your potential, right? अपने आप को आप पहचान सकते हैं. कुछ तरीके हैं रियलिस्टिक में, कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ. You can easily identify yourself where you stands for, right? Realistic, you are मैकेनिकल. अगर आप मैकेनिकल हैं इसका मतलब क्या पसंद करते हैं आप? वर्किंग विद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग थिंग्स, यूजिंग टूल्स. तो यू कैन बी इंजीनियर, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, और मिलिट्री ऑफिसर बन सकते हैं. ट्राई टू आइडेंटिफाई योर लाइक्स. यू आर बेसिकली हु यू आर.
Second, investigative. Means you are very much curious and science oriented. Means you like science. आपको science पसंद है, आपको technology पसंद है, आपको research पसंद है, आपको investigating पसंद है, और studying natural science पसंद है, तो आप you can become a physicist, biologist, psychologist, research or system analyst, and even you can become a dentist and engineers also, right? So there are n number of things that is to be there. Number three is called artistic. If you are creative and artistic, it means you like painting, you like design, you like singing, dancing, writing, reading, literature, listening to music, and number of things. So the possibility for you people should be like in terms of artist, a singer or musician, you must become an actor, writer, reporter, or interior decorator. So there are n number of things that you can be concentrate about. You can be social also. You can be, enterprising also. You can be conventional also. There are n number of things by which you are able to identify your area of interest, and you can opt the career of your interest, right? So the most important thing when we are trying to grab any career is the power of 4 P's. 4 P की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैरियर को ग्रैब करने के लिए, ऑप्ट करने के लिए. Number one, what is the purpose of your career, right? Number two, you are passionate about your job, yes or no? Number three, what are the possibility? अभी आपने ऑप्ट कर लिया, पता चला आने वाले टाइम में वो खत्म हो गया, उसकी पॉसिबिलिटी भी आप आइडेंटिफाई कीजिए. फाइनल, पावर. यू मस्ट हैव अ पावर. अगर आपके पास पावर नहीं है, आपको काम करने के लिए जुनून नहीं है, यू आर नॉट एबल टू ऑप्ट एनी कैरियर फॉर द लॉन्ग गोल. दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट? So one of the important things, now I am come to the next and most important part of career in terms of artificial intelligence. So here we are using two terms to be used in terms of artificial intelligence. Number one is called artificial and number two is called intelligence. So artificial means something made by humans or non-natural things. आर्टिफिशियल को हम बोलें, कृत्रिम बोल सकते हैं अगर इसको हिंदी में डिफाइन करें. और इंटेलिजेंस मीन्स आप क्या सोचते हैं, आप कैसे समझते हैं चीज़ों को, दैट इज कॉल्ड योर इंटेलिजेंस. So artificial intelligence consists of two major components. Artificial means non-natural and intelligence means way of thinking the things, right? So if I am talking about artificial intelligence in terms of science, that is in terms of computer science, so it is a branch of computer science that pursues creating the computers or machines as intelligent as human being. Means we are trying to make a machine or a computer so that it can behave in a same manner as human being behave. So in another word, we can also say that artificial intelligence is a study of how to make computer do things which at a moment people do better. So our aim is to mimic a computer or machines just like a human being, so that they can perform accordingly as per requirement of the human being, right? So artificial intelligence was developed by a scientist was named John McCarthy in 1955. According to him, artificial intelligence is basically the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. So what is program? अगर मैं program की बात करूँ, program is nothing. It is a set of instructions which is given by the human being, through which the computer will able to understand it and respond accordingly. So what is the primary goal of AI is to develop intelligent machines so that they can behave just like a human being, or they are just a replica or a mimic or copy of a human being, right? So we can understand this with the help of a figure if I am talking about artificial intelligence. On the left hand side, we have vast volume of data, means we have a large amount of data. System in center, we have a system or a machine or a computer which learns that data, and finally it processes that data and build a system which is known as intelligent system, which is able to take decision accordingly. Means जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए मशीन उसी तरह से बिहेव करे जो ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है, और अपने काम को परफॉर्म करे. जो भी डेटा उसको दिया जाता है उसको वो प्रोसेस करे, उसको लर्न करे,
और प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट या आउटपुट स्क्रीन पर दे. दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ एआई. Large of amount of data, gather data, process data, and after processing, it will provide the output to the human being with the help of machine, right? So the question arises how AI works. सबसे पहले इसमें we must have an environment where we can work upon. उसके बाद उस environment जिस environment में काम करना है, we are trying to detect the pattern of data. डेटा आपका रॉ डेटा है या आपका प्रोसेस डेटा है, वो क्या इंफॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको अपडेट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और उसको डिसाइड करेगा. तो कहने का मतलब ये है हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उस एनवायरनमेंट से हम डेटा को फैच करते हैं और उस डेटा को फैच करने के बाद उसको हम अच्छे से समझते हैं और समझने के बाद उस पर डिसाइड करते हैं कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए. दिस इज how the AI works. So I am talking about two different terms over here. One is known as data and another is known as AI. So what is information? Data is nothing, it is a collection of facts in raw form, and information is nothing, it is a processed data, right? अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डेटा आपका रॉ मटेरियल है और इंफॉर्मेशन आपका प्रोसेस मटेरियल है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ 100, तो व्हाट इज 100? वो 100 रुपीज भी हो सकता है, वो किसी का मोबाइल नंबर भी हो सकता है, एनरोलमेंट नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट अगर मैं उसके आगे लगाता हूँ RS 100, तो उसका मतलब क्या हो गया, हम पहचान सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रुपीज की बात कर रहे हैं. तो ये मेरे लिए रेलेवेंट मटेरियल हुआ. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन. तो डेटा को प्रोसेस करके उसको राइट फॉर्मेट में प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ एआई इज important task of any machine, right? So now I'm talking about the most important part of artificial intelligence. There are two types of artificial intelligence. Number one is called, it is based on the capabilities, and number two, it is based on functionalities. So when I am talking about based on capabilities, so it has further been categorized into three main parts. Number one is called narrow AI, number two is called general AI, and number three is called super AI. So we are talking the types of artificial intelligence over here. Though based upon capabilities, it has been categorized into three main parts. Number one is called narrow AI, number two is called general AI, and number three is called super AI. And based upon functionality, it can further be divided into four main parts. Number one is called reactive machine, number two is called limited memory, number three is called theory of mind, and number fourth is called self-awareness. जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूं तो उसको हम तीन कैटेगरी, ठीक है. आज की डेट में हम लोग सब किसी ना किसी फॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं. से फॉर एग्जांपल, जो नैरो इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है एलेक्सा, राइट? whatever instructions you are passed to Alexa, try to fulfill that requirement and react accordingly. दूसरा, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, हम लोग सभी जनरली मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं फेस रिकॉग्निशन. इट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस. गूगल मैप भी आपका आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का एग्जांपल है. इसके अलावा हमारा श्री भी एक तो एप्पल का बनाया हुआ इंटेलिजेंस रोबोट है जो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डेटा को देता है, राइट? सेकेंड है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. तो ये जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस. इट मीन्स ये उसी तरह से बिहेव करता है जैसे ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है, राइट? और ये फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आज की डेट में, ऑटो पायलट कार्स आपने सुना होगा, टेस्ला ने लॉन्च किया है. ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है. या दूसरा आपने देखा होगा जनरली चेस जो होता है ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच में,
So that is also an example of artificial general intelligence, right? And last but not the least, third है artificial super intelligence. Artificial super intelligence is basically surpasses the human intelligence. I think there is some glitch in my. So हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई के बारे में। नैरो एआई जो नैरो रेंज पे काम करता है, बहुत कम रेंज पे काम करता है, इसका एग्जांपल मैंने बताया, एलेक्सा हो गया, गूगल मैप हो गया, और आपका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम मोबाइल फोन्स में जो हम यूज करते हैं वो हो गया। जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, विच इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, तो ये उसी तरह से काम करता है जैसे ह्यूमन बीइंग काम करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आज की डेट में हम लोग सब यूज कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा चैट जीपीटी। जो भी इंफॉर्मेशन आप उसको देते हैं उसको एज इट इज फॉर्म में वो डिस्प्ले करने की कोशिश करता है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज नोन एज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस सरप्लसेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है? ये वो टाइम, वो समय जब मशीन्स ह्यूमन बीइंग को ओवरकम कर लेंगी, सरपास कर लेंगे, मीन्स वो हमसे आगे निकल जाएंगी। तो अभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले, अकॉर्डिंग टू एलन मस्क, आफ्टर 30 years there may be a situation where robots or machine will take over human being, right? So जब हम नैरो एआई की बात करते हैं तो इट इज जस्ट फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और जब हम जनरल एआई की बात करते हैं तो ये उसी तरह से काम करने की कोशिश करता है जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग काम करता है। और जब हम सुपर एआई की बात करते हैं तो ये वो एआई है जहाँ पर जो मशीन है वो ह्यूमन बीइंग से आगे निकल जाए, राइट। अभी इस पर काम चल रहा है। तो जनरल एआई तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, वो सुपर एआई पर काम कर रहे हैं, राइट। सेकंड है बेस्ड अपॉन फंक्शनैलिटी। देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज बेस्ड अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 1 is called reactive machine, number 2 is called limited memory, number 3 is called theory of mind, and number 4 is called self awareness। जब रिएक्टिव मशीन की हम बात कर रहे हैं तो ये केवल प्रेजेंट डेटा पे ही काम कर सकती है, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रेजेंट डेटा पे काम करता है, पास से कोई भी डेटा को कैप्चर नहीं करेगा, केवल प्रेजेंट डेटा पे काम करेगा। लिमिटेड मेमोरी एआई जो है, ये जो पुराना डेटा है उसको एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद डिसीजन ले सकता है। से इसका फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मान लीजिए डे बिफोर यस्टरडे देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ रेन। Yesterday there was also a situation of rain. So what will be the prediction? हमारा प्रिडिक्शन क्या होगा कि आज बारिश हो सकती है। तो उसका मतलब क्या है? मशीन पुराने डेटा को ग्रैब करती है, उसको एनालाइज करती है, उस पर कुछ एल्गोरिथम प्रोसेस करती है, और एल्गोरिथम प्रोसेस करने के बाद वो रिजल्ट देती है। दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टेड रिजल्ट, राइट। वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट में बी देयर। Then third is called theory of mind. It means it is basically just like a concept, जहाँ पर कंप्यूटर उसी तरह से काम करेगा जो ह्यूमन है, और उसके इमोशंस, उसके भी अपने एक इमोशंस होंगे। मेरे ख्याल से एप्पल का सिरी बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, जहाँ पर सिरी से आप जो भी क्वेश्चन पूछें वो आपको रेस्पॉन्ड करती है उसी फॉर्म में, राइट। एंड फोर्थ इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। अभी इस पर काम चल रहा है, जैसे मैंने बोला कि ये लास्ट पार्ट है, जिस जो हाइपोथेटिकली वर्क है, अभी इस पर काम चल रहा है, जहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं वो सरपास कर देंगे ह्यूमन बीइंग्स को, राइट, विच इज सेल्फ अवेयरनेस। Now the question arises, what are the job opportunities in AI? So there are 6 major areas through which AI professionals can be worked upon, right? Number 1 is called artificial intelligence engineer, right? So AI engineers are the professionals who use artificial intelligence and machine learning techniques to develop applications, right? अब इसमें एक टर्म यूज हुई है मशीन लर्निंग। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप से कुछ नहीं करता है, इसको करने के लिए आपको डिपेंड होना पड़ेगा 2 चीज़ों पे। पहला चीज़ है मशीन लर्निंग, और दूसरा हमारा है डीप लर्निंग। अब ये जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? मशीन अपने आप से लर्न करे। अब मशीन अपने आप से लर्न कैसे करेगी? जो उसने पीछे देखा है
उसको ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करने के बाद उस पर प्रोसेस किया है, और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट को यूजर को डिफाइन किया है, राइट. सो मशीन लर्निंग इज अ सब पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Similarly, there is one more term which commonly used with AI, which is known as deep learning. तो जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं तो डीप लर्निंग वर्क्स अपॉन अ न्यूरल नेटवर्क. न्यूरल नेटवर्क का जो टर्म है वो वही टर्म है जो हमारे माइंड में न्यूरॉन्स यूज होते हैं. तो इट वर्क्स अपॉन अ न्यूरॉन्स बेसिकली. तो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग बेसिकली सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब ये काम करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में होना चाहिए जिस पर हम काम करेंगे. मोस्ट कॉमन यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन वर्क अपॉन AI, machine learning and deep learning, which is known as Python. Or second, it may be R programming language also. तो Python और R programming language दो languages, मैक्सिमम Python यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट. तो ऑल इंजीनियर्स आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द टूल्स, systems and processes that enable AI to be applied to the real world problem. रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी इंजीनियर्स हैं वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का यूज करते हैं. तो ये हमारा पहला कैरियर है एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर. दूसरा, जैसे मैंने बोला, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, जो इनका मेन काम क्या होता है, रिसर्च करना और कुछ डिजाइन करना. और द AI रेस्पॉन्सिबल फॉर मशीन लर्निंग, they are basically responsible to maintain and improve existing AI system. AI system can only be maintainable with the help of machine learning engineers, right? और हम ये भी कह सकते हैं कि मशीन लर्नर इंजीनियर्स जो हैं या लर्निंग इंजीनियर्स जो हैं, it acts as an bridge between data science and data science members, and they are trying to fetch the raw data that has been processed and can be developed as per requirement of the human being. So they run experiments, test, perform statistical analysis and develop machine learning system. So artificial intelligence engineer जिस अगर बनना है तो उसके लिए मशीन लर्निंग इंजीनियर में होना चाहिए. मशीन लर्निंग इंजीनियर अगर आपको बनना है तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं पाइथन. तो आज की डेट में जो मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में चल रही है वो है पाइथन. पाइथन के थ्रू आप आर्टिफिशियल इंजीनियर बन सकते हैं और मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं, राइट. देन थर्ड इज कॉल्ड डेटा इंजीनियरिंग. एज द नेम इंडिकेट, डेटा इंजीनियर का मेन काम क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना, उसको मैनेज करना और रॉ डेटा को कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन में, ताकि हम उसको उस डेटा से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके डेटा को एनालाइज कर सकें और मैक्सिमम रिजल्ट दे सकें ताकि जो कंपनी है वो प्रॉफिट में आ जाए. तो दे मेक डेटा एक्सेसिबल सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज इट टू एवेल्युएट एंड ऑप्टिमाइज देयर परफॉर्मेंस. तो डेटा इंजीनियर्स का मेन काम क्या है, रॉ डेटा को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना और उसको एनालाइज करना कंपनी के प्रॉफिट के लिए. Data engineering is a broad field with application in nearly even every industry. So every industry needs data engineers nowadays. Data analysis आप देखो, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें भी डेटा एनालिसिस होता है, राइट. अगर मैं आपसे आप कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, यू नो, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेयर टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल not only to connect one person to another, but we are also able to access information with the help of various apps, चाहे वो मोबाइल एप्स हो चाहे वो वेब एप्स हो. So this plays an important role so that you are able to grab the thing in right direction with the help of these cutting edge of artificial intelligence. तो डेटा इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हुए चाहे मशीन इंजीनियर्स हुए, ये सारा एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट में आए. डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, राइट. देन वी हैव फोर रोबोटिक्स इंजीनियर. तो रोबोटिक्स इंजीनियर डेवलप रोबोटिक्स एप्लीकेशंस फॉर मैनी इंडस्ट्री, चाहे वो आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो मेडिसिन हो.
अगर रोबोटिक्स इंजीनियर आपको बनना है, उसके लिए दो चीज आपको चाहिए। आपको थोड़ा सा मैकेनिकल के बारे में भी पता होना चाहिए और थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। देन ओनली यू कैन बिकम अ रोबोटिक्स इंजीनियर, बिकॉज इट वर्क्स ऑन मैकेनिक्स and it also works on electrics or electronics engineering. So it's a combination of three things: mechanical plus electrical plus computer, right? Then software engineer. This is the hot cake, software engineer. These are also known as developers. जो भी सॉफ्टवेयर, जैसे आप भी हम काम कर रहे हैं, Zoom is a software, MS Word is a software, right? ये software has been created by an engineer which is known as software engineer. So they use programming languages like C, C++, Java, .NET, Python, R to develop a software. A software engineer may also test, improve and maintain software built by other engineers. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज की डेट में यूज हो रहा है, राइट। एंड डेटा साइंटिस्ट, एज आई ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर, डेटा साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जो डेटा को मशीन लर्नर जो नंबर है उससे एक्सेस करते हैं और एक्सेस करने के बाद कंपनी के प्रॉफिट के लिए उस पर वर्क काम करते हैं, राइट। डेटा साइंटिस्ट बाय यूज मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा और प्रोडक्ट ऑफरिंग। सो डेटा साइंटिस्ट के लिए आप बनने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं उसके लिए भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज की डेट में जो चल रहा है दैट इज नोन एज पाइथन, राइट। Now the question arises in mind once you understand all the concept, you learn programming language, you know basics about machine learning and deep learning, and what will be your package, what will be the salary for AI professionals. So entry level के लिए 4 to 5 lakhs अगर मैं इंडिया की बात करूं per annum, mid level के लिए 8 to 15 lakhs per annum, और अगर मैं experienced professionals की बात करूं तो उसके लिए we have 15 to 30 lakhs पर एनएम, और उसके ऊपर सीनियर लेवल्स के लिए हमारे पास 30 lakhs प्लस अबव का पैकेज आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल है, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे हम बच नहीं सकते हैं, फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। प्रेजेंटली भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस को किसी ना किसी फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अगर हम उसमें अपना कैरियर बना रहे हैं तो चाहे वो एंट्री लेवल हो, चाहे वो मिड लेवल हो, चाहे वो एक्सपीरियंस लेवल हो, चाहे वो सीनियर लेवल हो, उन सब के लिए जो पैकेजेस हैं बहुत अच्छे हैं आज की डेट में, राइट। अब कौन कौन सी कंपनी हैं जो एआई बेस्ड प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करती हैं? नंबर 1 इज गूगल। गूगल को आज की डेट में मशीन लर्नर एक्सपर्ट्स चाहिए और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्सपर्ट्स भी चाहिए, डीप लर्निंग एक्सपर्ट्स भी चाहिए। आईबीएम को भी सेम डेटा साइंटिस्ट चाहिए, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की नॉलेज होनी चाहिए उसको। फेसबुक, अमेजोन और एप्पल, चाहे मैं कोई भी कंपनी की बात करूँ, टॉप मोस्ट कंपनियां हो या मिडिल लेवल कंपनी हो, आज की डेट में हर जगह आर्टिफिशियल प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आजकल जो काम है वो सारा मशीन बेस्ड हो गया है। अब जब मशीन बेस्ड होगा, हमें किसी डेटा को प्रोसेस करने में जो घंटे लगते थे, मिनट्स लगते थे, सेकंड्स लगते थे, वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में कैलकुलेट हो जाता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकता है सिस्टम। दैट इज टॉप एआई रिक्रूटर्स कंपनीज और टॉप हाई लेवल कंपनीज इन इंडिया, so in not only in India but also in abroad, working for AI professionals, right? Of course, highest paying countries for AI engineers are United States number 1, Europe number 3 is India, then Germany, then Canada, then United Kingdom and China. तो अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ कैरियर, सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। यू कैन ऑप्ट योर कैरियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफ़ यू नो सम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, क्योंकि हम डेटा को जो गैदर करते हैं, उसको जो प्रोसेस करते हैं, उसको जो एनालाइज करते हैं और जब उसको हम डिपिक्ट करते हैं, जब हम प्रेजेंट करते हैं, दैट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ pictorial representation, that must be in terms of graph, that must be in terms of picture which is easily understood by each and everyone. तो हमारे पास अगर डेटा है, उस डेटा को हम अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एआई अकेला काम नहीं करता है, एआई के साथ
सब फैक्टर्स भी काम कर सकते हैं, सब सेट्स भी काम करते हैं, जो मैंने बोला है। नंबर 1 मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और इन सबको समझने के लिए, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है विच इज नोन एज पाइथन. So I hope you are able to understand the basic concept of artificial intelligence and you are trying to make your career. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम स्टार्ट इसको किस तरह से करें. इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले नो बेसिक्स जानना होगा प्रोग्रामिंग का, और प्रोग्रामिंग के बेसिक जानने के लिए आप डायरेक्टली पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट. देन जब आप पाइथन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. जब आप उसको पढ़ेंगे उसके बाद आप धीरे धीरे डेटा को एनालाइज करना सीखेंगे. जब डेटा को आप एनालाइज करेंगे उसके बाद उस डेटा पर आप एल्गोरिथम लगाते हुए, एल्गोरिथम इज द पार्ट ऑफ इट इज अ वे बाय विच यू कैन implement the things in a right direction from initial stage to the final stage, right. Step by step process is called algorithm, and program is nothing, it is a set of instructions. जब आपने डेटा को एनालाइज किया, उसको एल्गोरिथम से प्रोसेस किया, उसके बाद जो भी आपके पास आउटपुट आएगा वो आउटपुट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, राइट. एंड दैट मशीन कैन आल्सो अंडरस्टैंड. तो मशीन कोई चीज कब समझेगी, जब उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी. लेकिन हम उस एरा में हैं इस समय जहां पर हम ये चाहते हैं कि एक बार हमने अगर इंस्ट्रक्शंस मशीन को दे दिया तो वो जो हम कह रहे हैं वो तो फॉलो करे ही, बट अपने सजेशंस भी वो हमको दे. आज की डेट में हम लोग किसी ना किसी फॉर्म में एआई का यूज कर रहे हैं. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी. जी सर, एक पार्टिसिपेंट है विनीत, वो ये जानना चाहते हैं कि एआई की फील्ड में मेन चैलेंजेस. मेन चैलेंजेस, वेरी गुड क्वेश्चन. फिजिकल, हम लोग दूर होते जा रहे हैं फिजिकल से, राइट. सारा हमारी डिपेंडेंसी मशीन पर है, और हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं. अगर हमने अब तक जो बात करी एडवांटेजेस की बात करी, चैलेंजेस की बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने थर्ड फेज बताया था, अगर आपको याद हो, विच इज़ नोन एज इन फ्यूचर अगर मशीन ह्यूमन बीइंग को ओवरकम कर लेगी तो उस केस में हम उसको कैसे डील करेंगे, राइट. ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है. तो उसके लिए काउंटर प्रोग्राम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू हुई है. अगर आपको याद होगा, आपके हर एक, मेरे मैक्सिमम लोग कंप्यूटर्स यूज करते होंगे किसी ना किसी फॉर्म में. आपने देखा होगा आपके सिस्टम पे वायरसेस आते हैं, राइट. तो वो वायरस जो आते हैं उसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस यूज करते हैं. तो सिमिलरली अगर जब हम टोटली मशीन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाएंगे जहाँ मशीन इमोशन को, ह्यूमन इमोशन को भी समझेगी, तो उस समय ऐसा हो सकता है कि आदमी की जो नेसेसिटी है वो मार्केट में खत्म हो जाए. तो उससे डील करने के लिए हमें एंटी एआई टूल्स पर काम करना होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको किस तरह से डील करें. उस पर काम चल रहा है मार्केट. दिस इज द मेन चैलेंज, राइट. और आपकी अपनी क्रिएटिविटी भी खत्म होती जा रही है. जैसे चैट जीपीटी मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं इसकी डेट में. अगर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है तो पहले हम लोग जो सोचते थे तब लिखते थे, अभी हमने केवल एक टॉपिक डाल दिया उस पर, वो ऑटोमेटिकली उसको एप्लीकेशन लिख के दे देता है. तो दिस इज जैसे आपकी जो थिंकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं कम हुई है. अगर आपको याद हो, हम लोग सब मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमें मोबाइल नंबर से याद नहीं रहते हैं. सारे मोबाइल नंबर हमारे मोबाइल पे फीड है. लेकिन जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो हमें सारे नंबर से याद रहते थे. तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेमोरी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. सर, विनीत जी का ही अगला क्वेश्चन भी है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या एआई ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट है. हाँ, ऑफ कोर्स, आने वाले टाइम में थ्रेट तो है ही. उसी के चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा, आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज आज की डेट में रोबोट है, या जहाँ पर मशीनों ने ह्यूमंस पर कब्जा करने की कोशिश की है. तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा. अगर ये सिचुएशन आए तो हम क्या करें, किस प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको डिकोड कर सकते हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज चैलेंज. सर, विकास जी का एक क्वेश्चन है कि उन्होंने 2016 में बीटेक किया है और अभी एमटेक कर रहे हैं, तो क्या एमटेक के बाद जो इतना बड़ा गैप है, इसमें अगर वो कोई कोर्स कर ले एआई में, तो क्या कोई अच्छी जॉब लगने के स्कोप है. बिल्कुल 100% स्कोप है, बट उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन जरूर पढ़ें, राइट. पाइथन पढ़ने के बाद आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाएंगी.
चाहे आप अपना फील्ड एआई में बना सकते हैं, चाहे आप अपना फील्ड डीप लर्निंग में बना सकते हैं, चाहे आप अपना फील्ड डेटा एज अ डेटा साइंटिस्ट भी काम कर सकते हैं। जी सर, राहुल जी ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज है जो एआई में अभी बेस्ट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एनसीआर रीजन में, तो एनसीआर रीजन में जो टॉप लेवल पे काम कर रहा है उसमें आपका एक है डीम्ड यूनिवर्सिटी एसआरएम। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उसमें पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रहा है, और यहाँ पर शिव नादर और बेनेट यूनिवर्सिटी भी अच्छा काम कर रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा जी का है। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई नॉन टेक्निकल फील्ड से है लेकिन एआई में कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करके इस फील्ड में आना चाहता है, तो क्या आगे जाके जॉब में कोई प्रॉब्लम। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए, कंप्यूटर फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें नॉन कंप्यूटर बंदा भी आराम से सरवाइव कर सकता है, राइट। केवल आपका थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा इंटेलिजेंस अगर आप हैं तो आप उसको आराम से कॉप अप कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कंप्यूटर साइंस फील्ड में चाहे आपका नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे डिप्लोमा किए हुए हो, चाहे आप लॉयर हो, इवन वो सब कंप्यूटर में सर्वाइव कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और प्रोग्रामिंग स्किल्स को अपना डेवलप करना है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जानवी जी का है। वो ये जानना चाहते हैं कि एआई के आने के बाद बहुत सारे जॉब्स हैं राइटिंग के फील्ड में, जैसे क्रिएटिव राइटिंग है या एड्स में है या कॉपी राइटिंग है। तो ये सब जॉब्स में बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या ऑल्टरनेट हो सकता है आगे चल के। देखिए, ऑल्टरनेट हमेशा रहता है मार्केट में। अगर आप एआई की बात करें, कंटेंट राइटिंग की बात करें, तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट निकल के आता है, राइट। चैट जीपीटी पे अगर आप कोई भी कंटेंट टाइप कर रहे हैं तो एक उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। वो समझ में आता है कि ये पैटर्न आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है, राइट, किसी ना किसी फॉर्मेट। तो उसकी लैंग्वेज इस तरह की होती है जो जनरल, अगर हम लोग सोचें तो वो एक जनरल लेमन सोचे तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, नंबर वन। तो वो क्रिएटिविटी है, आप चीज़ों को कितने अच्छे से सोचते हैं और आपका लर्निंग स्किल्स क्या है, आप फ्यूचर में उसको किस तरह से एक ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं पब्लिक को, या एज पर डिमांड, तो यू कैन सर्वाइव विद इट, यू नो। जी थैंक यू सो मच सर। हमारे सब आज इतनी ही क्वेरीज हैं, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे सबने, वो सब आपने अच्छे से सबका रिस्पांस दिया है। और आज क्वेश्चंस इसीलिए भी कम थे क्योंकि आपने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान ही काफी सारी चीजें क्लियर कर दी थी, काफी स्पेसिफिक और एकदम टू द पॉइंट था। थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए। और बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और फील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आई एम श्योर कि जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया होगा उनको उससे बेनिफिट हुआ होगा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।